مزید اظہار خیال کے لیے میں گزارش کروں گا، بنیادی طور پر تعلق ہماری اسی دھرتی سے، کوٹلی سے تعلق، آزاد کشمیر کا ہر کوچا کوچا کریا کریا چانا، افسرے کی اور پھر دل لگا لیا حرف و معنی سے شاعر، ادیب، کالم نگار، قطع لکھتے ہیں۔ میری مراد جناب اکرم سہیل صاحب سے ہے۔ اگر کچھ تعارف میں کمی رہ گئی ہو تو میری کوتاہی ہے۔ اکرم سہیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور حال میں تمام خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے سید شبیر احمد شاہ صاحب کو مکتب عشق کے عنوان سے پنجابی صوفی شعراء اور ان کی شاعری پر اتنی خوبصورت خطاب لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاید اسی لیے کسی نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس کتاب میں جہاں عظیم صوفی شعراء جو پنجاب اور آزاد کشمیر کی دھرتی پر پیدا ہوئے، ان میں بابا فرید، گنج شکر، شاہ حسین، بلے شاہ، وارث شاہ، خواجہ غلام فرید اور سرزمین کشمیر کے عظیم صوفی شاعر میاں محمد بخش کے حالات زندگی اور ان کے کلام اور پیغام کو موضوع بنایا ہے، وہیں آج کے زمانے کے پنجابی شعراء جوگی جہلمی، استاد دامن جیسے ادب کے درخشاں ستاروں کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ سارے لوگ عشق حقیقی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ان کا کلام لوگوں کے دل و دماغ کے بند کواڑوں کو کھول کر ان میں شعور اور آگہی کا وہ پیغام پہنچاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعے انسانوں کے لیے اتارا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا اور انسان کو تمام مخلوق کے مقابلے میں بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ وہ خدائی پیغام ہے جو کل انسانیت کو عزت و احترام کی ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کا اتباع کرو، اس لیے کہ جس نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معزز حاضرین، اپنے من کی سچائی اور صفائی وہ بنیاد ہے جو انسان کو آسن تکریم کے درجہ پر فائز کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روح کو میل رجالات، کذب، انتقام اور ہر قسم کے تعصبات سے پاک کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ اسی پیغام کو سلطان بہو نے ایسے بیان کیا تھا کہ تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ معزز سامعین، دوسرا پیغام جو ان صوفی شعراء نے بر صغیر میں پھیلایا اور اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے اور جو یہاں اسلام پھیلنے کا سبب بنا، وہ احترام انسانیت اور مساوات انسانی کا پیغام ہے۔ بر صغیر جہاں پر معاشرتی تفریق و تقسیم نے مذہب کا درجہ حاصل کیا ہوا تھا، وہاں پر ان صوفیاء کا مساوات انسانی، تقریب آدمیت، عدل و اخوت کا پیغام انسانی آزادیوں کے لیے ہوا کا خوشگوار جھونکا تھا جو کروڑوں انسانوں کے لیے اس سماجی بت پرستی سے آزادی کا پیغام تھا۔ اس پیغام میں انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں بلکہ پیار و محبت کے ساتھ امن و سلامتی کے دین کو پہنچانے کا وہ طریقہ جو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا کہ اے نبی، اگر آپ تلخ مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ صوفیہ کا مشن اسی پیغمبری مشن کی روایت کا تسلسل ہے جس میں لوگوں کے کردار و عمل کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون اس ہدایت سے خالی ہے۔ بلے شاہ نے اسی فکر و عمل کے تضاد کو ایسے بیان کیا ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بج مسیتی جاندے ہو، پٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری میں پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، تے دل دے پاک پوتر حجرے، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو،
दसो ना कुछ हजरत जी ऐ की कीती जांदे हो। तो बुल्ले शाह का ये पैगाम किसी खास जमाने या किसी खास तबके के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो सियासी, माशरती, समाजी और तजारती 2 नंबरी बल्कि 10 नंबरी करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके नजायज़ मुनाफाखोरी करने के बाद टिकट कटाया और हज उम्रा के ज़रिए गुनाह माफ़ कराने के लिए निकल पड़े। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ज़ेर बहस किताब मकतब इश्क ने वो भूले हुए सबक भी याद करा दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि अवामी शऊर और हकीकी तसव्वुफ़ के नज़रियात को फैलाने में ये किताब एक दरख्शां किरदार का अदा करेगी। और इसमें उन सूफ़ी शुरा के पैगाम को एक नए ज़ाविये से पेश किया गया, जिसके ज़रिए तमाम क़ारीन और ख़ुसूसी तौर पर नई नस्ल को हकीकी तसव्वुफ़ बेहतरीन अंदाज में समझाया जा सकता है। इंसानी तहज़ीब और तमद्दुन की बुनियाद इंसानी रवैयों और अमाल पर होती है। अगर इंसानी जिबिल्लतों और इंसानी ज़मीर की तामीर सच्चाई, अदल व इंसाफ, एहतराम इंसानियत की बुनियाद पर होगी, तो वो लोग जो माशरा तामीर करेंगे वो माशरा भी अदल व इंसाफ, खुशहाली और अमन का माशरा होगा। और ये सूफिया कराम इसीलिए बार बार इंसानी किरदार साजी के लिए अपने मन की सफाई पर जोर देते हैं, वरना इस किरदार से खाली इंसान के पास जितना भी इल्म हो या जितना भी अपने आप को इबादत गुजार समझे, वो नताइज के एतबार से तही दामन होंगे। बुल्ले शाह इसीलिए कहता है कि मस्जिद मंदिर वड़ वड़ थकिया, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं, इल्म किताबां पढ़ पढ़ रजिया, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, शैताना नाल रोज लड़ेंदा, कदी नफ्स अपने नाल लड़े ही नहीं। कि बुल्ले शाह तू उड़दियां फड़ना है पर अपने आप नू फड़िया ही नहीं। मौजूद हाज़रीन, इस आज की इस किताब के मुसन्नफ सैयद शबीर शाह ने मकतब इश्क में वहदत वजूद के नज़रिए के हवाले से सूली चढ़ने वाले सरबत और मंसूर हल्लाज के मकतबा फ़िक्र को भी ज़ेर बहस बनाया है। मंसूर हल्लाज और सरबत इसी इश्क हकीकी की तशरीह करते हुए दार पर जुड़ गए थे। इन सूफिया के अनल हक के नारे का कतन ये मतलब नहीं था, या वो ये कहते थे कि हम खुदा हैं, बल्कि वो कहते थे हम खुदा नहीं हैं, लेकिन हम खुदा से जुदा भी नहीं। इससे मुराद ये थी कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी हुई है, और इस्लाम का पैगाम मसवात इंसानी है। इंसान को ये रवा नहीं कि वो किसी बादशाह, किसी जालिम, किसी जाबर के आगे अपना सर झुकाए। इंसान का सर सिर्फ खाल की हकीकी के आगे झुक सकता है। लेकिन उस जमाने के मनुफियत में फरूनों, कानूनों और हमानों का गठजोड़ हर उस आवाज को मजहब दुश्मन करार देकर सूली पर चढ़ा देता था, जो बादशाहत और उसके हवारियों की खुदाई को चैलेंज करता था। इस्लाम जैसे दीन और मजहब पर भी बादशाहों ने उस जमाने के हमानों और के तावन से उनके फतवों के जोर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, और जिसका इजहार ऐसे किया गया, सुल्तान बहू ने किया था कि मजबान दे दरवाजे उच्चे, हक दी इको मोरी हो, मुल्ला पंडित लंगन नहीं देंदे, वो लंघिया सो चोरी हो। इसी मौजू पर आरफे खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श ने भी लिखा था कि लखा बैर बैरी नू लगदे, लखा बैर बैरी नू लगदे, कुछ रेंदे कुछ ढेंदे, जेड़े पकन मोहम्मद बख्शा वटे उन्हां नू कहंदे। और मौजूद हाज़रीन, मौजूद शबीर शाह साहब ने इस किताब को सूफिया के कलाम से खूबसूरत पैराए में डाला है, और इसमें उस्मान हारूनी का हवाला भी दिया है, जो ये बुल्ले शाह कहते हैं ना कि मैनू नच के यार मनावन दे। इसी कैफियत को हज़रत उस्मान हारूनी ने मंसूर हल्लाज के हवाले से ऐसे बयान किया कि मनम उस्मान हारूनी के यार शेख मंसूरे, मनम उस्मान हारूनी के यार शेख मंसूरे, मलामत मी कुलत खल के सरे बाजार भी रकसम, तू आ कातल के अस बहरे तमाशा खून मन रेजी, मन आ बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखार भी रकसम। मैं उस्मान हारूनी हूँ, शेख मंसूर का दोस्त, खलकत मुलामत करती रहे, मैं सरे बाजार रक्स करूँगा। तू वो कातिल है जो फ़कत तमाशा देखने के लिए मुझे कत्ल करता है, मैं वो बिस्मिल हूँ कि खूंखार खंजर के नीचे भी रक्स करूँगा। मज़लूम हज़रात, सूफिया के ये रक्स इंसानों की पाँव में पड़ी जुल्म की बेड़ियों और जबर की बेड़ियों को तोड़ने के लिए था, और रहती दुनिया के लिए पैगाम भी था कि हम दुनिया के किसी खुद साख्ता खुदा को नहीं मानते, किसी जाबर जालिम हाकम के आगे सरनगू नहीं होना है,
चाहे हमारी गर्दन ही क्यों न चली जाए। हमने देखा कि तारीख के सफर में इंसानियत की सरफराजी के लिए उठने वाली हुर्रियत की आवाज़ों को जबर कत्ल तो कर सकता है, लेकिन उन्हें खामोश नहीं करा सकता। ऐसे लोग और उनकी आवाज़ें सूली पर लटक कर भी अमर हो जाती हैं। और क्या अजब बात है ए कातिबे तकदीर तेरी, क्या अजब बात है ए कातिबे तकदीर तेरी, जाम प्यारों को अनल हक का पिला देते हो और बदल देते हो फिर मानिए वो तो हयात, और बदल देते हो फिर मानिए वो तो हयात, जिंदा रखना हो तो सूली पर चढ़ा देते हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तमाम पैगम्बरान इकराम अपने अपने ज़माने के इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ उस ज़माने के माशरों को बदलने के लिए आए थे। और सूफिया ने ये रवायत खूब निभाई, पुरअमन माशरे एक दूसरे से नफ़रत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हमागिरियत, जियो और जीनो दो के शुरू पर चलते हैं। और जहाँ इंसान दूसरे इंसानों के दीन व ईमान और उनकी जन्नत व दोज़ख के फैसले करना शुरू कर दें, वहाँ के माशरों का वही हशर होता है जिसका नतीजा आज हम अपने मुल्क में मुख्तलिफ सूरतों में देख सकते हैं। और बकौल उस्ताद दामन के पज पज के वखियाँ चूर हुईयाँ, पज पज के वखियाँ चूर हुईयाँ, मुड़ वेखिया खोती बोड़े। तो हमने इल्म, मुकालमा और गुफ्तगू को फतवा बना दिया। इस फतवे के खौफ से इल्म की जुस्तजू और मुकालमे के दरवाजे बंद हो गए। मज़हब आदमी को इंसान बनने का तरीका सिखाता है ताकि औलाद आदम आसल तकवीम का, खुदा का मुकर्रर करदा मयार हासिल कर सके। और ऐसे इंसान ही ऐसी रियासत की बुनियाद रख सकते हैं जहाँ पर मसवात इंसानी, अदल इज्तमाई, माशरती खुशियाँ और आज़ादियाँ रखने वाला माशरा और वही इनाम याफ्ता माशरा तश्कील पाता है जिसका वादा अल्लाह पाक ने सूरह कुरैश में किया है कि वो माशरा रूप के खौफ से आज़ाद होगा और वहाँ पर अमन कायम होगा। और बुल्ले शाह ने इसलिए कहा था कि वेखते से ही आसमाना उठे कि पंख पखेरो कर देनी, ना वो कर दे रिस्क ज़खीरा, ना वो भूखे मर देनी। और तसव्वुफ़ के हवाले से अपनी बात इन दो अशार पर ख़त्म करूँगा कि एक तसव्वुफ़ है जो करवाता है सबसे सजदे, एक तसव्वुफ़ है जो करवाता है सबसे सजदे, एक तसव्वुफ़ है जो हुजरों में पड़ा रहता है, एक तसव्वुफ़ है जो करवाता है सबसे सजदे, एक तसव्वुफ़ है जो हुजरों में पड़ा रहता है, एक तसव्वुफ़ है जो है सरमदो मंसूर की रस्म, एक तसव्वुफ़ है जो है सरमदो मंसूर की रस्म, जुल्म के सामने डट कर वो खड़ा रहता है। बहुत शुक्रिया।